Hello students, today's topic is computerized accounting with GST. In the last class what we have gone through was how trending in the modern ways people are more and more focusing on getting the softwares for doing the accounts rather than keeping a notebook, a person handy to do the accounts and all. So in today's era, everybody, even if it is a small business person, is using accounting softwares. In the last class, the PPT generally focused on what is the process of accounting software, how is the accounting software working. So what we saw was there are three blocks when we say the accounting software. Like every software works, there is an input block, there is a processing block, and there is an output block. Printing block, or you can say there is an input block. Input block means where the user is giving input to that particular software. So what we have learned in the last class was the input, the input things, or you can say the input sources in accounts are nothing but called as masters, and those masters consist of ledgers, groups, vouchers, items, stock items, godowns, etc. So these were nothing but the particular masters that was used by the users to give the input to that particular you can say accounting software. Second block was processing block. Processing block generally deals with accounting vouchers, inventory vouchers, invoices. That means the major task of that particular software is processing the input data that is being given by the particular you can say user. Anybody who is running their own business accounting software would be requiring the users giving the input and getting it back. Third block was output block. Output block is nothing but where you generally get the reports as a user. जो भी आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, कंप्यूटर ने उस पर्टिकुलर इनपुट को प्रोसेस किया, एंड व्हाट इज फाइनली बीइंग देयर on that particular software is nothing but the analysis of all the data being inputted by the user, so that you get as an output. So next thing to understand is process of accounting software. Accounting software generally works with 7 steps or 7 procedures, 7 modules. We learn one by one every module. First module is creation of a company. Now if I say creation of a company, that means if you are newly using a particular software, how will you start? अगर मैंने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट यूज़ करना स्टार्ट किया है फॉर माई ओन स्मॉल बिजनेस, तो फर्स्ट स्टेप किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को इनिशियलाइज करूंगी ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ अ कंपनी. नाउ क्रिएशन ऑफ अ कंपनी जनरली रिक्वायर्स the basic details of that company. जिस भी particular company, जिस भी particular organization का accounts वो particular software handle करने वाला है, उस particular software या उस particular organization का accounts handling. So that all comes under accounting software. So here I'll say that giving the name to the company, it would be name of the company. It would be like if I say XYZ trader, so XYZ trader is nothing but the name that I have given to my company by which my company will do the business all over. ठीक है, एक ऐसा नाम जिस नाम से आपकी पूरी कंपनी, आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन वुड बी डूइंग ट्रेडिंग विद दैट नेम. नेक्स्ट इज द ईमेल एड्रेस, स्पेसिफाइड ईमेल एड्रेस फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी. यानी जो भी लीगल मैटर्स है, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, उनको अगर आपके साथ कोई क्वेरी है, एनीथिंग कोई टेंडर देना है, एनीथिंग दैट शुड कम टू योर कंपनीज पर्टिकुलर ईमेल आईडी. नेक्स्ट इज एड्रेस, दैट मीन्स फिजिकल एड्रेस ऑन द मैप विद द पर्टिकुलर पिन कोड. देन इट इज फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग. हर जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा, एवरी कंपनी हैव देयर ओन टाइमिंग फ्रॉम विच दे स्टार्ट द फाइनेंशियल ईयर. जनरली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1st of April, आखिरी में 30th मार्च एंड ऑल इज द ईयर एंडिंग, वी से 31st. नेक्स्ट इज द बुक बिगनिंग. जब आप एक बुक मेंटेन कर रहे हो तो उसकी बिगनिंग आपको कौन से डेट एंड टाइम के साथ करनी है, दैट कम्स अंडर बुक बिगनिंग. क्रिएशन ऑफ लेजर्स. नाउ व्हेन आई से second step inside the
processing, or you can say the process of accounting software is creation of ledgers. जनरली जो मॉडर्न अकाउंटिंग यूज़ कर रही है दैट इज़ नथिंग बट अ सिंगल लेजर कॉन्सेप्ट, जो हम सारे हमारे अकाउंट्स के डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं. ऑल द फाइनेंशियल एंट्रीज जो भी एक अकाउंट की है वो एक एक अकाउंट हेड के अंदर मैनेज होती है. ऑल दीज कम्स अंडर लेजर. लेजर अकाउंट्स आर क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस. किसको पैसे दिए हैं, किससे पैसे लिए हैं, कितना कितना सेल किया है, कितना परचेज किया है, हर चीज़ का ट्रांजैक्शन. किसी से कैश में पैसे लिए हैं, किसी को क्रेडिट पे माल दिया है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज बीन होल्डेड बाय लेजर्स. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर. अब जब आप काम कर रहे हो कंपनी के साथ तो आपको कैसे समझ में आएगा दैट आई हैव टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक वाउचर. अकाउंट्स में लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था दैट देयर आर स्पेसिफाइड गाइडेड या यू कैन से देयर आर गाइडलाइंस जो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक तरीके से यूज़ करता है सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर एवरी बिजनेस टू यूज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. एक जनरलाइज सेट ऑफ रूल्स हैं जो सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स इनकॉर्पोरेट करते हैं सो दैट एनीबडी इज यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर बट देन जो भी उनका कम्युनिकेशन है दैट शुड नॉट बी हैम्पर्ड. सो हाउ you people will select a correct voucher. A voucher is a pre-numbered accounting document used for recording the daily transactions. हर दिन का जो डेली ट्रांजैक्शन है, कितना कैश पेमेंट आ रहा है, कितना चेक है, कितना ऑनलाइन है, कितना हमने दिया है परचेजिंग के लिए, कैश दिया है, क्रेडिट दिया है, हर टाइप के ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए देयर इज अ डिफरेंट वाउचर गिवन इनसाइड accounting softwares. So here are the voucher types. There are different types of voucher. We'll learn one by one. First is called as receipt. Amounts that are received by the way of cash. अगर हमारे शॉप पे कोई कस्टमर आ रहा है एंड वी आर सेलिंग समथिंग एंड दैट कस्टमर इज पेइंग अस इन कैश, सो वी गिव अ रिटन रिसिप्ट जिसपे आपके कंपनी का नाम होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी है एंड आइटम का डिटेल होगा, कितनी क्वांटिटी होगी और प्राइस पर पीस का ऑल इन ऑल टोटल. सो दिस इज नथिंग बट जो भी पैसा आपको कैश में मिल रहा है फॉर दैट डे, दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वुड गो इनटू द रिसिप्ट वाउचर. सेकेंड वाउचर इज कॉल्ड एज पेमेंट वाउचर. पेमेंट वाउचर कैसे काम करता है, जितनी भी पेमेंट्स आपने की, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने किसी एम्प्लॉय को कैश में सैलरी दी है तो वो जो कैश ट्रांजैक्शन है आपने पेमेंट की है, दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल कम अंडर पेमेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाउचर. थर्ड इज कॉल्ड एज सेल्स वाउचर. कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जितनी भी आपके गुड्स और सर्विसेज जो भी आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, कैश और क्रेडिट. क्रेडिट मतलब क्या, when we are providing the services, we are providing the goods, but हम तुरंत पैसे नहीं ले जाए, जैसे क्रेडिट कार्ड काम करता है. हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे दैट पर्टिकुलर पर्सन को वी आर गिविंग अ लिमिट कि आप यूज कर लीजिए एंड यू पे एट सर्टेन टाइम. सो ऐसे टाइप के जितने भी वाउचर्स होंगे वेयर यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट कम्स अंडर सेल्स. जितना आप सेल कर रहे हो वो सेल में आता है. इन द सेम वे अगर आप किसी से परचेज कर रहे हो, आपके कंपनी के लिए कोई रॉ मटेरियल है, कोई सेमी फर्निश्ड गुड्स है, फर्निश्ड गुड्स है फॉर योर कंपनी ऑन कैश और क्रेडिट, दैट कम्स अंडर परचेज वाउचर. इन द सेम वे कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या करता है, अगर आपका जो भी कंपनी अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो उससे अगर आपने उसमें कैश डिपॉजिट किया है किसी ने, या उस पर्टिकुलर अकाउंट से कैश विड्रॉ हुआ है, या फिर अगर आपने आपके अकाउंट से किसी को ट्रांसफ़र किया है पैसा, ये सारी डिटेल्स जो है अकाउंट की डिटेल्स, दैट कम्स अंडर कॉन्ट्रा टाइप ऑफ वाउचर. सेकेंड इज कॉल्ड एज नेक्स्ट इज कॉल्ड एज जर्नल. नाउ जर्नल इज नथिंग बट अगर हमको किसी ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करना है, कहीं पे कोई एरर्स है या कहीं पे एडजस्टमेंट्स करनी है किसी एंट्रीज में, परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन डेबिट्स और क्रेडिट्स, ऐसे टाइप के जो वाउचर्स होते हैं दैट कम्स अंडर जर्नल. नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट. अगर आपने आपके कस्टमर ने आपसे कुछ खरीदा एंड ही देन कम्स एंड सेज कि आई हैव टू रिटर्न दिस, रिटर्न ऑन द कंडीशन दैट जो प्रोडक्ट आपने बेचा था उसका प्राइस रिड्यूस हो गया है, इन दैट केस वो जो वाउचर के अंडर आता है ट्रांजैक्शन, दैट इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट. सेकेंड इन द सेम वे इज परचेज रिटर्न. अगर आपने आपके सप्लायर को, यानी सपोज अगर मेरा ग्रॉसरी स्टोर है और मैंने हल्दीराम से डेयरी प्रोडक्ट्स लिए हैं, इफ आई गो एंड रिटर्न दैट डेयरी प्रोडक्ट टू द हल्दीराम बैक, तो ऐसे टाइम पे जो प्राइस रिडक्शन का जो भी प्राइस गिवन बाय द सप्लायर था, अगर उसमें रिडक्शन हो गया है और हमने रिटर्न कर दिया है,
all these transaction will come under purchase sales. Now having example to understand कि कौन से टाइप का वाउचर हमको सिलेक्ट करना है. फर्स्ट इज पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश. आई टोल्ड यू अगर मैंने किसी को सैलरी दी है कैश में तो वो आता है किस पर्टिकुलर वाउचर में, इट कम्स अंडर पेमेंट वाउचर. सेकेंड इज नथिंग बट रिसीव्ड कैश. अगर मुझे कैश मिला है तो वो आता है रिसिप्ट में. आई टोल्ड यू अगर हमको कोई कस्टमर पैसे देकर गया है तो दैट इज नथिंग बट रिसिप्ट. थर्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू क्रेडिट. अगर मैंने सेल किया है बाय डिफॉल्ट इट कम्स अंडर सेल्स. अगर मैंने परचेज किया है नंबर 4, परचेज द गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट, इट कम्स अंडर परचेज. नेक्स्ट इज नंबर 5, understanding the cash deposited in the bank and cash withdrawn. I told you contra is the voucher that deposits the cash and withdraw. कैसे deposit होगा, कैसे withdraw होगा, how it is done? It is done with the help of cash deposited, cash withdrawn, and it comes under contra type of voucher. Last type, last understanding depreciation of machinery या depreciation on machinery. Now everything हर जो machine या tools हम लोग business में use करते हैं it comes with a depreciation. depreciation मतलब हमने कुछ खरीदा, उसको use किया, उसको जो मेंटेनिंग कॉस्ट लगता है ना. आज मैं अगर एक गाड़ी 50,000 में खरीद रही हूँ, एक मोपेड, एंड आई यूज इट फॉर 3 years एंड देन आई रीसेल इट, ठीक है, तो एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट, एक कॉस्ट कट के हमको 50,000 के 50,000 कभी नहीं मिलते वापस. सो दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी, दैट कम्स अंडर जर्नल. गेटिंग? Next is GST calculation. Now GST stands for Goods and Service Tax. Goods and Service Tax, this was this came into picture on 1st of July 2017. Our Prime Minister Mr. Modi he came with the concept that if it is one nation we should have one tax to simplify the categories. पता है कैसे होता था पहले कि हर स्टेट का अपना खुद का एक टैक्सिंग सिस्टम था, नाका एंड ऑल दीज कम्स अंडर दोस टैक्सिंग सिस्टम्स. तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए और एक जैसा टैक्स हो all over the nation, for this purpose it came into picture that GST should be applied. GST has it is an indirect tax which has replaced बहुत सारे indirect taxes in India. It has replaced many indirect taxes. So it is one nation, one tax. Now when I say GST calculations, this is nothing but fourth step of that particular processing of accounting software. मैं जब 5वें स्टेप पे आती हूँ तो इट इज़ नथिंग बट पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. अब हमको ये तो समझ गया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है. नाउ हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वाउचर में पोस्ट करना है, ठीक है. सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, कैसे आप ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हो. तो पोस्टिंग अ ट्रांजैक्शन थ्रू वाउचर इज कॉल्ड एज वाउचर एंट्री. जब आप किसी ट्रांजैक्शन को किसी वाउचर के अंदर लिखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर एंट्री. While recording a transaction through the voucher, the account is to be debited or credited along with. ठीक है, आपने जब रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन किसी भी वाउचर में तो जो अकाउंट है, जो आपका मेन अकाउंट है, उसमें से पैसे गए या पैसे आए वो दिखना चाहिए उस पर्टिकुलर अकाउंट में. इट शुड बी अवेलेबल, that amount should be available, that this much is credited, this much is debited. We can type the narration. Now the people who are using this particular software have an authority to type the narration. Narration मतलब अगर मैंने कोई transaction किया है and I want that मैंने किसके लिए ये transaction किया, to simplify it more so that the person who is not from the accounts department can understand कि ये पैसा किसको दिया या किससे लिया, for minimizing that thing, or you can say for controlling that thing, what comes under this thing is called as narration. But this is an optional feature of accounting software. Generally people are not using narration. We can add any number of debits or credits in a voucher depending upon the type of transaction. किस type का transaction है उस type पे depend करके आप कितने भी debits और credits एक particular voucher में enter कर सकते हैं. Now we'll understand कि प्रोसीजर क्या है वाउचर एंट्री का. देर आर बेसिक 6 steps when you are entering
a particular transaction in a voucher, first step is क्रिएशन ऑफ लेजर विद एप्रोप्रिएट ग्रुप और सब ग्रुप. हमने लास्ट क्लास में ग्रुपिंग पढ़ा था. ग्रुपिंग इज नथिंग बट सिमिलर एंटिटीज जो होती हैं बिजनेस की उसको एक हेड के अंदर लेकर आना. सो व्हेन यू आर एंटरिंग अ ट्रांजैक्शन, जब आप एक वाउचर एंट्री कर रहे हो तब आपने सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैड टू क्रिएट अ ग्रुप. यानी अगर मेरे पास इफ आई एम रनिंग अ ग्रॉसरी स्टोर और उस ग्रॉसरी में डेयरी इज वन पर्टिकुलर हेड, ठीक है, and we can say namkeens and all is the other category. So हर category head को group बोला जाता है. So creation of a ledger with appropriate group or subgroup. Second, select the appropriate voucher type from the voucher menu. अभी हम लोगों ने different type के vouchers पढ़े. तो second thing is to understand or to to टाइप और यू कैन से अगर जैसे सेल्स है, परचेज है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, तो अगर मुझे पैसे मिले हैं एक कैश में तो नहीं, मुझे समझ में आना चाहिए कि आई हैव टू सिलेक्ट द receipt voucher. So understanding and selecting the appropriate voucher type from the voucher menu is the second step. Third, enter the voucher date. Now this is another important factor when you are doing the voucher entry. आपको voucher date is very important. किस दिन कितना दिया, कितना business हुआ, क्या sales थे, क्या purchase थे, that generally हम लोग dates के साथ बहुत ज़्यादा accounts में काम है. So that is again a major factor when you are doing a voucher entry. Next, number fourth step is select the debit account name from the list. मतलब debit account name मतलब accounts में जब आप पढ़ रहे हो, so debit what comes in and credit what goes out. Generally जो normal savings account होता है तो उसमें credit what comes in and debit what goes out. तो जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं तो डेबिट अकाउंट यानी हमारा जिस अकाउंट में पैसा आना चाहिए उस पर्टिकुलर अकाउंट को अच्छे से सिलेक्ट करना फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड एंटर द अमाउंट कि इतने पैसे आ गए. देन अगेन सेकेंड फिफ्थ स्टेप इज सिलेक्टिंग द करेक्ट क्रेडिट अकाउंट. किसको दिए पैसे, ठीक है, किसको दिए पैसे उसको उस अकाउंट को भी अच्छे से स्पेसिफाई. ऐसा नहीं होना चाहिए अगर मैं 4 लोगों के साथ बिजनेस कर रही हूँ और मैंने पैसे किसी और को दिए और अकाउंट किसी और का सिलेक्ट किया. दिस शुड नॉट हैपन. सो मेकिंग इट वेरी properly. Select the credit account name from the list and enter the amount. Last is enter the narration and save. Now this step is again I said it is optional. Not every people is using. Why? Because narration and saving is nothing but saving is mandatory but narration is optional because not every transaction needs a narration. Next is displaying various reports. Now when I say reports, तो रिपोर्ट्स जनरली कवर होती है. यानी पता है जब आप अकाउंटिंग में काम कर रहे हो तो हमने इनपुट दे दिया मास्टर्स की हेल्प से, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने उसको प्रोसेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, इनवॉइसेस एक्सेट्रा, सब काम किया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने. एंड देन आप डिस्प्ले करने की बारी आती है. यानी जो भी डेटा पे आपके जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने काम किया है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने काम किया है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का रिजल्ट क्या है, ठीक है. हाउ इज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग योर डेटा इज नथिंग बट डिस्प्लेइंग वेरियस रिपोर्ट्स. सो व्हेन आई से रिपोर्ट्स और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट्स, इट सेज that in computerized accounting various financial or inventory reports can be generated after finishing the recording of transaction or even at timely intervals. It says that हर computerized accounting में there is a feature, inbuilt feature that gives you the access कि आप एक पर्टिकुलर टाइप की रिकॉर्डिंग के बाद, एक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के बाद उसका रिजल्ट देख सकते हो. या फिर कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो एक टाइमली पीरियड सेट करते हैं कि नहीं 3 महीने बाद मुझे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है या कितना परचेज हुआ है, कितना सेल्स हुआ है. तो यू कैन इवन सेट और सी दैट टाइमली इंटरवल रिपोर्ट्स. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स वील अंडरस्टैंड. फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्या करता है, एक एक what you say a trial output दिखाता है, which provides you a report with debit and credit balance of all the ledger accounts. जितने भी आपके ledger accounts हैं उसके debit और credit के transaction की एक detail आपको दिखाता है. that is nothing but trial balance.
सेकेंड इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जब मैं बात करती हूँ तो जब आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर, जैसे सपोज अगर मैंने पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का मुझे प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जब आपको आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दिखाता है, सो दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट. थर्ड इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट. इट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट दैट शोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ योर बिजनेस. कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कौन कौन सी मशीनरीज हैं, उस पर कितना डिप्रिसिएशन है, एवरीथिंग. वो जो सारी चीजें शोकेस करता है, दैट इज नथिंग बट बैलेंस शीट. नेक्स्ट इज द डे बुक. डे बुक क्या करता है, अगर मुझे एक दिन का ट्रांजैक्शन देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बुक स्टोर है, ठीक है, बुक स्टोर में कितनी बुक्स आज मैंने परचेज की फ्रॉम द वेंडर्स, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, कितनी बुक्स कौन कौन से कैटेगरीज की. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड की इतनी इंग्लिश की बुक्स मैंने सेल की, 10th स्टैंडर्ड की इतनी बुक सेल की. सो दैट इज हाउ, अगर मुझे एक डे का ट्रांजैक्शन देखना है तो जनरली जो रिपोर्ट यूज की जाती है डेली ट्रांजैक्शंस को मैप करने के लिए, दैट रिपोर्ट इज नथिंग बट अ डे बुक. इट कंटेन्स ऑल द वाउचर्स फॉर द डे इंक्लूडिंग इन्वेंटरीज, डेज ट्रांजैक्शन, दो यू कैन डिस्प्ले अ रिपोर्ट फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग अ चेंज पीरियड ऑप्शन. आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देयर इज अ चेंज पीरियड ऑप्शन गिवन. आप किसी भी टाइम पीरियड का ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख सकते हो, बट देन एक डे बुक का ऑप्शन एक्स्ट्रा इसीलिए दिया गया है सो दैट द यूजर्स कैन कीप द डेली ट्रांजैक्शंस हैंडी. लास्ट इज नथिंग बट द जीएसटी रिपोर्ट. जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस विद द हेल्प ऑफ जीएसटी मिनिमाइज कर दिए गए हैं. इट हैव कम अंडर वन रूफ. तो कितना जीएसटी आपने कस्टमर से लिया और कितना आपने पे किया. समरी of the GST received and paid by you is nothing but the GST reports. Next is printing various reports. अब finally हमारे पास डेटा मिल गया, हमने रिपोर्ट्स देख ली, बट एक रूल होता है अकाउंट्स का कि जब भी आप when you are doing business, तो जनरली वी हैव टू कीप ट्रैक रिकॉर्ड्स. ठीक है, ये ट्रैक रिकॉर्ड्स कहाँ पे काम आते हैं, हमारे फ्यूचर पर्पस के लिए. किस साल में हमने किसके साथ किस चीज़ का बिजनेस किया था, उसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ था, एनालाइज करने के लिए. जनरली जब ऑडिट्स होते हैं बिजनेसेस पे, कंपनीज में, तो वहाँ पे पीपल दे डू नॉट रिलाई ऑन योर एक्चुअल आपके डेटा पे जाके, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे जाके वो कुछ नहीं देखेंगे. इट विल सी योर प्रीवियस रिपोर्ट. सो दैट इज मैंडेटरी दैट यू नो दैट यू शुड रिकॉर्ड और you should print the particular audits. Thank you for today. Now what I want you people to understand is that ये अभी तक जो हमने पढ़ा, this is just basic. From the next class onward we'll be learning कि एक्चुअली में GNU खाता जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो काम कैसे करता है. इसके पहले तक generally what was being used was Tally. Now people are more and more moving towards the various other accounting softwares. Majorly what we need to learn is GNU Khata. So what I'll do is I'll advise you people to just go and read a little bit of accounting softwares. There are various accounting softwares available on internet. बहुत सारे open source softwares available हैं internet पे. उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को सर्च करिए, उनको थोड़ा सा सर्फ करिए, किस तरीके से फीचर्स दिए गए हैं, कैसे आपको उस पर काम करना है. इन द नेक्स्ट क्लास आई टेल यू हाउ वी आर यूजिंग GNU खाता, कैसे वाउचर्स की एंट्री करते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं. जितना हमने आज स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, उन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली कैसे करते हो, दैट विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर टुडे.